باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علیہ اما بعد وقد قال تعالی وقال بسم اللہ الرحمن الرحیم واسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. الحمدللہ ماہ مبارک رمضان کے سلسلے میں مسلسل آپ حضرات اس درس کے بہانے سے فضائل ماہ مبارک رمضان ابھی سماعت فرما رہے ہیں اور فضائل کے ساتھ ساتھ مسائل کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے. سب سے پہلے انبعاث کے لیے اور ابھارنے کے لیے تاکہ ہمارے اندر اور امنگ پیدا ہو، جوش پیدا ہو، جذبہ پیدا ہو، لہذا مسلسل آپ حضرات ثواب کی بحث سماعت فرما رہے ہیں کہ ماہ مبارک رمضان میں خیرات و برکات کے علاوہ اللہ تعالیٰ دے گا کیا، اس کی جزا کیا ہے، اس کا ثواب کیا ہے. تو ثواب کے لیے اگر دیکھا جائے احادیث کے تحت، اور وہ بھی حدیث قدسی، کہ اس میں ثواب لکھنے والوں نے ہاتھ اٹھا لیا ہے، یعنی ہر چیز کا ثواب معین ہے، لہذا معین ثواب کے لیے احادیث میں آ گیا کہ اتنا ثواب ملے گا، یہ کرو گے تو اتنی جزا ملے گی. لیکن کچھ ثواب ایسے ہیں جہاں پر اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ اے ملائکہ اب تم ہٹ جاؤ، اس کی ثواب، اس کی جزا، اس کا ثواب ہمارے تحت ہے، ہم جانتے ہیں کہ اس کو کیا جزا ملنے والی ہے، کیا ثواب ملے. لہذا روزے کے لیے بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الصوم لی و انا اجزا بے یا اجزی بے، دونوں عبارت آئی ہوئی ہے. پہلا ترجمہ یہ ہے کہ الصوم لی، روزہ ہمارے لیے ہے، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اور میں ہی اس کی جزا دوں گا، اپنے ہاتھ سے جزا دوں گا. اور دوسری جگہ پر ہے کہ انا اجزا بِهِ، میں اس کی خود جزا بن جاؤں گا. اللہ اکبر. یہ بہت بڑی بات ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ جزا بن جائے تو آپ کہیں گے کہ اگر اللہ تعالیٰ جزا بن جائے تو اس کی مثال کیا ہے، یعنی یہ جزا دوں گا تو یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ یقیناً اس کی جزا یہ ہے، ثواب یہ ہے، اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے گا، جنت دے دے گا، غلمان دے دے گا، حور دے دے گا، ملائک خدمت میں رہیں گے، خلائق خدمت میں رہیں گے، رسول اللہ کی زیارت ہوگی، اہل بیت کی زیارت ہوگی، اور وہاں پر اچھے لوگوں کے درمیان میں رہے گا، آپس میں ایک دوسرے کو سلام علیکم کہے گا. چونکہ جنت کی ایک زبان یہ بھی ہے فیہا تحیۃ و سلامہ، آپس میں ایک دوسرے کو دیکھتے ہی کہیں گے سلام علیکم، سلام علیکم، طبتم لکم، تمہارے لیے یعنی بہت تم پاکیزہ لوگ ہو، بڑے اچھے لوگ ہو. یہاں پر آئے تو ان کی زبان یہی ہے سلام علیکم. یعنی اگر کسی گھر میں ماحول بن جائے سلام علیکم کا، چھوٹا بڑے کو کر رہا ہے، بڑا چھوٹے کو کر رہا ہے، ہر وقت سمجھے جنت کا ماحول ہے. چونکہ جنت کی تعریف میں ایک تعریف جو ہے یہ بھی ہے آیات کے لحاظ سے کہ فیہا تحیۃ و سلامہ، کہ جنت کے اندر لوگ خالی نہیں بیٹھیں گے، جیسے ہی ایک دوسرے کو دیکھیں گے کہ سلام علیکم، سلام علیکم، سلام. اور اس کے بعد جب اٹھ کے جانے لگیں گے تو ان کا کیا کلمہ ہوگا وہ بھی قرآن نے کہا، یعنی ایسے آپس میں بیٹھ گئے، ایک دوسرے سے ملاقات کر رہے ہیں، سلام کر رہے ہیں، حوال پرسی کر رہے ہیں، اب جانے لگے تو جاتے جاتے کہیں گے وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، یعنی ان کا آخری جملہ یہی ہوگا کہ ساری تعریف اللہ کے لیے. تو جنت کی تعریف میں یہ بھی کہ جنت کا ماحول کیا ہے، اپنے گھروں کا ماحول یہی بنائے کہ سلام علیکم، چاہے کوئی بھی ہو، شرمانے کی ضرورت نہیں. چھوٹا بچہ بھی ہے اس کو تو اس لیے بھی کرے تاکہ اس کی عادت پڑے، یہ نہیں کہ آپ سوچیں ارے آداب کرنا چاہیے یا میں بڑا ہوں تو کیوں کروں، نہیں، اس لیے جلدی سلام کر دیں بچے کو تاکہ اس کے ذہن میں رہے کہ نہیں سلام کرنا چاہیے، آداب نہیں کرنا چاہیے. لہذا اتنا زیادہ ثواب اس کا رکھا ہے کہ ایک مثال تو مل گئی آپ کو کہ جب ثواب رکھا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اپنی مرضی دے دے گا، اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اہل بیت کا دیدار کروا لے گا، اس کے بدلے میں مولا حسین کی زیارت ہو جائے گی. یہ ثواب بہت بڑا ثواب پھر بھی ہے کہ مولا حسین کی زیارت ہو جائے، جیسا کہ آیت میں ہے. بہرحال چونکہ قرآن مجید کی آیت کی تفسیر بھی ہو جائے تو اچھا ہے، اس مہینے میں زیادہ تر تفاسیر کا ذکر ہو رہا ہے. ایک آیت یہ ہے
यानी वहाँ पर दो आयतें साथ में, पहले वाली पढ़ दे तो समझ में आपके आ जाए, कहेंगे हाँ ये तो बात सही है। सीक़ल्लज़ीना यानी जहन्नुम में जाने वालों को ढकेल के जहन्नुम में ले जाया जाएगा, क्योंकि कोई ऐसे थोड़ी देख रहा है कि जहन्नुम की आग भड़क रही चला जाएगा अपने कदमों से, तो उसको मलाइका ढकेलते हुए ले जाएंगे। सीक़ल्लज़ीना उनको जो है खींचा जाएगा, खींच के ले जाया जाएगा। तो ये तो बात समझ में आ गई। लेकिन उसके बाद वाली आयत कहती है कि जन्नत जाने वालों को भी उनको पीछे से हका के ले जाया जाएगा, यानी वो जन्नत की तरफ उनका कदम नहीं बढ़ रहा होगा, मलाइका उनको लेकर के जाएंगे। अब यहाँ रिवायत ने पढ़ के सहारा दिया कि जहन्नुम में तो ठीक है, समझ में आता है कि ढकेल के ले जाएंगे, नहीं हिम्मत पड़ रही है, लेकिन जन्नत में क्यों ढकेला जाएगा, और जन्नत में क्यों फरिश्ते पीछे पीछे रहेंगे, आगे बढ़ो, लेकिन बढ़ने वाला बढ़ेगा नहीं आगे। तब रिवायत ने बढ़ के सहारा दिया, चूँकि जन्नत जाने से पहले जन्नत के गेट पर मौला हुसैन खड़े रहेंगे और उनका चेहरा इतना नूरानी, इतना ज़्यादा चमकता हुआ रहेगा कि लोग देख के भूल जाएंगे कि जन्नत में भी जाना है। तो फरिश्ते कहेंगे आगे बढ़ो, तुम देख चुके दूसरों का नंबर है, आगे बढ़ो। यानी लोग महो हो जाएंगे जो रसूलुल्लाह के लिए बिलखुसूस और मौला हुसैन के लिए ये लफ्ज़ है रसूलुल्लाह के लिए भी कि ऐसा दीदार रसूलुल्लाह का रहेगा कि लोग सब नेमतों को भूल जाएंगे। लिहाजा दुआ भी किया करें जन्नत वगैरह की दुआ बाद की बात कि परवरदिगारा क़यामत में रसूलुल्लाह का दीदार हो जाए, अहले बैत का दीदार हो जाए अलैहिस्सलाम। बहुत ख़ास बात यह है कि इंसान अहले बैत के दीदार के लिए, जिसके लिए पल पल गुजार रहा है, यानी आप समझिए अहले बैत अलैहिस्सलाम का दीदार इतना कीमती है, मौलाए कायनात का दीदार इतना कीमती है कि अगर एक जुमला कह दे तो इंशाअल्लाह ये भरपाई हो जाएगी, उसी से बात समझ में आ जाएगी कि मौला का दीदार तो इतना कीमती है कि हमारे पास सबसे कीमती चीज़ जान है। जब हम जान दे देते तब अली सामने हाजिर हो जाते हैं, यानी दुनिया का कोई भी माल उठा दे हम अली को नहीं देख सकते। अपना महल, अपना कसर, अपना मकान, अपना घर, अपना बार, अपना जो है अपनी जायदाद, सब कुछ ख़त्म कर दें, मौला अली का दीदार नहीं हो सकता। लेकिन इधर जैसे ही रूह हमने पेश किया कि अब रूह जा रही है अल्लाह ताला के लिए, तो मौला कायनात साहब ने खड़े और ख़ुद उन्होंने फरमा दिया, या हारो हमदान मैं यमुत यरनी है, हारे से हमदान जो भी मरता है मुझे देखता है। यानी पता चला कि सबसे कीमती चीज़ हमारी जान है। जब हमने जान दिया तो जैसे ही जान देने लगे देखा अली सिराने हमारे खड़े हुए, तो पता चला इनका दीदार बहुत बड़ा। अगर दीदार ही हो जाए तो दीदार के सदक़े में सब कुछ मिल जाएगा। लिहाजा जन्नत की दुआ बाद में, गिलमान की दुआ बाद में हो रहा है, ये कि अहले बैत का दीदार हो जाए, रसूलुल्लाह का दीदार हो जाए। लिहाजा दो आयत की तफसीर समझिए आप, बात में हो गई। एक ये कि जहन्नुम में क्यों ढकेल के ले जाया जाएगा, वो तो समझ में आ रहा है कि कोई भी अपने पाँव से जलती हुई जगह पर नहीं जा सकता, लिहाजा फरिश्ते ढकेल। लेकिन ये कि जन्नत में ढकेल के ले जाया जाएगा, तो हमारे उलमा किराम ने बताया जन्नत में इसलिए ढकेल के ले जाया जाएगा कि जन्नत के गेट पर मौला हुसैन खड़े होंगे, इतना ज़्यादा उनका नूर होगा कि लोग भूल जाएंगे कि हमको जन्नत भी जाना है। लिहाजा फरिश्ते कहेंगे अब तुम आगे बढ़ो, अब तुम आगे बढ़ो, ये पीछे वालों को भी तो नंबर आए, यानी दूसरे लोग भी तो मौला हुसैन को देखें। तो ये दो आयत, लिहाजा जब उसने कह दिया कि मैं जज़ा बन जाऊँगा, तो अब जब अल्लाह ताला ने कह दिया एक जगह पर तो मैं खुद जज़ा दूंगा, ये तो बात समझ में आ रही कि अल्लाह ताला जज़ा देगा तो क्या, एक ये कि मैं बन जाऊंगा। तो जब अल्लाह ताला जज़ा बन जाएगा तो उसकी मुख्तसर सी मिसाल यही कि यकीनन आप फ़ौरन समझ जाएंगे कि जिन लोगों के लिए अल्लाह ताला जज़ा बन गया है उनकी मिसाल यहाँ पर है। ऐसा नहीं क़यामत में देखेंगे, बल्कि दुनिया ही में है कि जब अल्लाह ताला किसी चीज़ के लिए जज़ा बन जाएगा तो देखने में रहेगा कि हाथ उसका है, लेकिन अल्लाह ताला का हाथ होगा, यदुल्लाह हो जाएगा, ऐनुल्लाह हो जाएगा, उज़नुल्लाह हो जाएगा। बस यानी अब अल्लाह ने कह दिया कि मैं खुद जज़ा बन जा रहा हूँ, यानी जो अल्लाह के सिफ़ात है वही उसके बंदे के सिफ़ात हो जाएंगे। मौलाए कायनात मज़हर सिफ़ात जमालिया और जलालिया हो जाएंगे इंशाअल्लाह। तो ये मौलाए कायनात के लिए ख़ास अहले बैत के लिए, लेकिन अल्लाह ने कहा नहीं और कोई नेकी करे तो उसके लिए भी मैं ये जज़ा जो है रखता हूँ और इंशाअल्लाह ये जज़ा दूंगा। लिहाजा हमारे पास बात आ गई, चूँकि बात जो है वो मुख्तसर मजमा नहीं देखना, ये बहुत दूर तक जा रही बात, लिहाजा इस बात की तरफ इशारा कर दिया जाए कि कुरान में जितनी भी आयात हैं अहले बैत अलैहिस्सलाम की मदा में, पंजतन की मदा में, तो ये न समझे कि बस आखिरी ख़त है कि उनके लिए कह दिया तो बस उन्हीं के लिए है, नहीं, उन्होंने खुद ऐसा कहा है कि ठीक है हमारे लिए आयत आई है, लेकिन यही काम तुम करो तो दूसरे नंबर पर तुम्हारे लिए भी आयत है। यानी ये बहता हुआ समंदर है, ऐसा नहीं कि 1400 साल पहले जो कह दिया बस उन्हीं के लिए, नहीं, अगर वही काम तुम करोगे तो वही दर्जा तुमको भी मिलेगा। अलबत्ता पहला दर्जा अहले बैत के लिए है, उसके बाद उसकी मिसाल ऐसे ही जैसे जनाब यूसुफ
जनाब यूसुफ बच गए तो अल्लाह ताला ने इतना बड़ा दर्जा दिया गुनाह से बचने का कि अब क़यामत तक वो मिसाल उनकी कायम रहेगी। तो सिर्फ जनाब यूसुफ के लिए नहीं है, उनकी जगह पर जो भी बच जाएगा, नाम उसका यूसुफ नहीं रहेगा लेकिन काम वही रहेगा, फजीलत वही मिलेगी। जो उनके लिए ख़ास पूरा सूरह यूसुफ नहीं है, जो भी उस मौके पर बच जाए, अपने आप को बचा ले, गोया उसको वही दर्जा मिलेगा जो जनाब यूसुफ को मिलेगा। लिहाजा इंशाअल्लाह सवाब की बहस अभी और आगे बढ़ेगी, चूँकि अभी एक ही रिवायत की शरह किया तो अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 10 मिनट हो गए, चूँकि हमारे पास ये कि 10 मिनट तक फ़ज़ाइल और 10 मिनट तक मसाइल, 20 मिनट का क्लास होता है माशाल्लाह। और ये बहुत ही कुरान और हदीस के तहत बहुत ही लुब्बे लुबाब जिसको कहा जाए, यानी एक एक हदीस पर अगर बहस की जाए तो हफ्ते 10 दिन तक चलेगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह यह आपका नसीब है कि समझिए आपको बहुत जल्दी से पूरा माना दे दिया जाता है। सलवात भेजे आप। लिहाजा इंशाअल्लाह अभी माह मुबारक रमज़ान के सवाब के सिलसिले में कुछ बातें और आएंगे और इसके फ़ज़ाइल भी आएंगे। उसके साथ जो सबसे पहले मुब्तला बे मसला है, यकीनन सारे मसाइल हमारे मुब्तला बे हैं जो हमारे लिए लाजिम है, उसमें पेश भी किया। तकलीद का मसला अल्हम्दुलिल्लाह 2-3 दिन तक बहस हुई। उसके बाद जो है तकलीद के बाद फ़ौरन वज़ू का मसला आता है, गुस्ल का मसला आता है, तयम्मुम का मसला आता है, अपने लिबास को कैसे पाक करें, अपने बदन को कैसे पाक करें, गुस्ल जनाबत क्या है, ये सब भी आएगा। लेकिन जो सबसे ज़्यादा अभी फ़िलहाल आपको ज़रूरी है उसमें जमात का मसला है, क्योंकि जमात में आने के बाद आदमी को ये मालूम होना चाहिए कि जमात में हम आ रहे हैं तो हमको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। तो उसमें सबसे पहले ये है कि सिर्फ 2 सूरे का ज़िम्मेदार होता है इमाम, यानी जो पहली रकत में सूरह अलहम, उसके बाद सूरह नातैना, दूसरी रकत में सूरह अलहम, कुल हुवल्लाह, बकिया सब आपको पढ़ना है। मुख्तसर ये याद रखना कि 2 सूरे सिर्फ आपको सुनना है, यानी आप पीछे भी हैं तो आवाज़ जाती है, बाकायदा गौर करें सूरह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तो आपको अल्हम्दुलिल्लाह नहीं कहना बल्कि दोहराते रहना, यानी आप अपने दिल में सोचते रहें कि इसका ये माना है, इसका ये माना है। और उसके बाद दूसरा सूरा फिर जो है, यानी दूसरी रकत में भी पहली रकत और दूसरी रकत एक ही तरीके 2 सूरे, बकिया आपको रुकू में अपना जिक्र करना है, सजदे में अपना जिक्र करना है। उसके बाद आप तशहुद अपना पढ़िए, सलाम अपना पढ़िए। सिर्फ ये है कि आगे पीछे ना हो, यानी साथ साथ रहे, यानी रुकू भी आप पढ़ रहे हैं तो पेश नमाज पढ़ रहा है, आप आहिस्ता आहिस्ता पढ़ते रहिए। सजदा भी जो है पेश नमाज जो है पढ़ रहा है, जिक्र कर रहा है, तो आप भी मसला आवाज़ भी तेज़ ना होने पाए। जैसे वो दिन आप मसला माशाल्लाह आया था, मुकब्बिर के लिए ख़ास इजाज़त, जो पीछे रहता है, चूँकि मजमा ज़्यादा बड़ा है, पेश नमाज की आवाज़ नहीं, तो कुछ चीज़ें वो तेज़ ऐसा कर देता कि मजमा तक पहुँच जाए कि हाँ अब ये हो रहा है, अब रुकू हो रहा है, अब सजदा। ईरान में तो जाएंगे इंशाल्लाह, वहाँ बाकायदा अलग से लगा दिया जाता है और माइक को दिया जाता है, ताकि चूँकि बहरहाल यहाँ तो मजमा मुख्तसर है, ईरान में माशाल्लाह एकदम 10 लाख का मजमा, 20 लाख का मजमा, बल्कि वहाँ तेहरान में 40-40 लाख का मजमा होता है, तो उसको कहते हैं मुकब्बिर। मुकब्बिर को अलग से वो है, लेकिन बकिया जितने भी हैं 2 सूरा छोड़ करके सब पढ़े, जानबूझ करके आमदन कोई चीज़। और ऐसा नहीं है कि ये सोच लें कि नहीं हम रुकू में आए थे और नहीं पढ़ पाए, चल नहीं जाएगा, बल्कि आपको पढ़ना ही पढ़ना है, ज़िक्र रुकू भी करना है, ज़िक्र सजदा भी करना है। तो ये जमात का मुख्तसर सा मसला हो गया। उसके बाद आप मसलन तशरीफ़ लाए, एक रकत हो गई थी या पहली रकत ख़त्म पर थी, रुकू में था, तो आप दूर ही से इशारा कर दीजिए, या मसलन कहें इन्नल्लाह मअस साबिरीन, इशारा कर दीजिए, तब भी हम समझ जाए इन्नल्लाह मअस साबिरीन, यानी थोड़ा ज़िक्र को पेश नमाज बढ़ा दें। या वहीं से कह दी या अल्लाह कह गए, तो अब इसमें आपको यानी इतनी छूट दी गई है कि मसलन यहाँ जमात हो रही है और आप अभी दरवाजे से पहुँचे, 2 सफ लगी हुई है, तो आप दरवाजे के पास ही नियत करके खड़े हो जाइए। उसके बाद रुकू करते हुए या सजदे हल्के से आप जो है खसक के आप मुत्तसिल, यानी ज़रूरी नहीं कि आप रुकू छोड़ करके दौड़ करके आए तब तक रुकू ख़त्म हो जाए, नहीं, आपके एक सब का फासला नहीं पहुँच पा रहे तो वहीं नियत कर लें और इतनी आहिस्ता से अपने आप को खसकाएं कि पता न चले कि चल रहे हैं, तो उसमें ये आपके मुत्तसिल हो सकते हैं। और या अल्लाह बोल देंगे तो हम जैसे एक दफ़ा कहते हैं सुबहान रब्बिल अज़ीम व बिहम्दे, तो 3 दफ़ा कह देंगे। 3 दफ़ा ख़त्म पर है तो हम कह देंगे सलवात भी पढ़ देंगे, सलवात भी ख़त्म पर है तो हम वाजिल फ़रजहुम कह देंगे, यानी जो है इंशाअल्लाह आने वाला। और इसमें नियत में भी ज़रूरी नहीं खड़ा हो बहुत देर तक नियत करे, तब तक सोच ले, जिसमें 1 सेकंड लगता है, आकर के सोच ले 3 रकत मगरिब की इमाम के पीछे, ये सोचता हुआ आके खड़ा हो जाए, अल्लाहु अकबर जो कह रहा है यही उसका क़याम हो गया। यानी क़याम में ज़रूरी नहीं पूरा जो है खड़ा हो मुकम्मल, अल्लाहु अकबर कहने पर उसने कह दिया, हाथ उठा के अल्लाहु अकबर, उसका क़याम मान लिया गया। अब उसकी 1 रकत हो गई, या 1 रकत जो है अगर छूट गई थी तो दूसरी रकत मान ली जाएगी रुकू करने से। अब जो है हम पता चला कि हम
दूसरी रकत में तशहुद पढ़ेंगे, उसके बाद तशहुद नहीं है तो क्या करेगा, अब तशहुद में ऐसे बैठा नहीं रहेगा, बाकायदा तौर पर दोनों हाथ और ये दोनों जो है पंजे उठा लेगा वो। यानी उसकी मिसाल ऐसे ही है जैसे कि रेफरी जब सीटी बजाता है दौड़ने के लिए तो लोग खड़े बैठे रहे, बाकायदा उसकी एक हरकत होती है कि कहता पंजे पर आ जाओ, दोनों हाथ को टेक लो, उसके बाद जो दौड़ाता है तो 1 2 3 कहते ही वो जो है दौड़ना शुरू कर देता है। इसी तरह से आपको आराम से बैठना नहीं तशहुद, बल्कि जो है आपको पूरा पंजा और बाकायदा दौड़, यानी एक जहमत अल्लाह ताला ने इसलिए हो सकता दिया हो कि आइंदा ऐसा ना करना, ये तुम्हारे लिए गोया सदा है कि तुम ऐसे बन के रहो, जब तक तशहुद पढ़े ऐसे ही रहो, आइंदा इसका ख्याल रखना कि लेट मत आना। यानी बहुत आराम से लोग बैठे हुए, तो आप भी बैठे हुए, उसमें आपको जो है ना पढ़े चलेगा, लेकिन ये हरकत जो बताया ये करना पड़ेगा। उसके बाद पता चला कि पेश नमाज की तीसरी रकत, आपकी दूसरी रकत, आप जल्दी जल्दी तशहुद पढ़ लीजिए, और तशहुद इतना लेट ना पढ़िए को खड़े होकर के तीसरी रकत हो जाए आप तशहुद ही पढ़ते रहे, नहीं उसमें जो है आप मुख्तसर सा जो होता है वो जिक्र करके सलवात पढ़ करके खड़े हो जाइए। तो इस तरह से अब यहाँ पर अगर आपके दिमाग में ये आए कि लेट हो गए तो क्या सवाब हमको कम मिलेगा, नहीं, सवाब भी, चूँकि जमात का जो सवाब है वो चाहे एक रकत छूट न गई हो, लेकिन आप जो है अपने दिमाग में थे आपके कि दौड़ के जाना है, पहुँचना है, सवाब लेना है, तो पूरा सवाब मिलेगा। हदीस में मन अदरकर रकतल ऊला या अदरकर रकात फ़कत अदरकत सला, जिसने एक रकत को भी दर कर लिया गोया उसने पूरी नमाज को दर कर लिया। फिर आप कहिए इसके बारे में मिसाल दीजिए, फिर मैं मिसाल दे, चूँकि हदीस को मिसाल से समझाया जाए तो बात, मसलन आप गोमती एक्सप्रेस पकड़ने गए, पता चला 21 डब्बे की जो ट्रेन है, और आप जैसे ही गेट पर पहुँचे देखा कि सीटी बज गई और ढूंढने लगी, पता है 4-5 डब्बा निकल गया, आप जो है प्लेटफार्म पर पहुँचे तो आधी ट्रेन निकल गई, 16-17 डब्बा निकल गया, अब आखिरी 2 या 3 डब्बे बचे हुए। आपकी आदत माशाल्लाह बॉम्बे में रहे तो दौड़ के ट्रेन पकड़ लेते हैं, पकड़ सकते हैं, तो अगर आखिरी डब्बा भी आपने पकड़ लिया या 2 डब्बा आखिरी का, तो ऐसा नहीं है कि 20 डब्बा लखनऊ में जाके खड़ा होगा, 2 डब्बा मसला जो है नानक पर खड़ा हो जाएगा एयरपोर्ट पर, नहीं, जहाँ 20 डब्बा पहुँचेगा वही 2 डब्बा भी पहुँचेगा। इसी तरह से जहाँ सबकी नमाज पहुँचेगी वही आपकी भी नमाज पहुँचेगी, चाहे एक रकत पा जाए चाहे 2। देखें बहुत अच्छी मिसाल है, इसको इंशाल्लाह बिठा लीजिए ज़हन में कि अहादीस को समझाने के तरीका है कि कैसे समझा जाए, कि अहादीस जो मुश्किला है उसको बहुत मिसाल के ज़रिए समझाया जाए। लिहाजा आज जमात की मुख्तसर में इंशाल्लाह, और अभी जो जमात की बहस आएगी उसमें जिसके जहन में हो वो अलग से भी पूछ सकता है, टेलीफोन नंबर या बैठ भी जाएंगे 5 दफ़े, क्योंकि कुछ मसले ऐसे एक दफ़ा नहीं समझ में आते, कुछ हमारे नौजवान बच्चे नई उम्र के, उनको दोबारा जो है अगर कहेंगे दोहरा भी दिया जाएगा और अलग से भी समझा दिया जाएगा। एक सलवात भेजा देखिए 20 मिनट का दर्स है तो 1 मिनट बचा हुआ आपके लिए, मैं दुआ करा दूँ पहले। जो आखिर में शामिल होगा बाद में, हाँ, वो तकबीरतुल इहराम 2 मरतबा ही तो कहेगा, 1 मरतबा वाजिब कह ले और मुस्तहब भी कह ले तो बेहतर, मतलब जो पहला उतने का पहले तो उसकी कयाम की हो जाएगी, हाँ, और दूसरी रुकू में ऐसे ही हाँ, है ना, मतलब एक भी कह दिया तो काफ़ी, वाजिब अदा कर ले, मुस्तहब दूसरी वाली मुस्तहब कह दिया तो बेहतर, मतलब एक उसने कह दिया सीनियर से कि वाजिब मैं अदा कर रहा हूँ तो तकबीरतुल इहराम वही पहली, दूसरे फिर अल्लाह अकबर कह के गया तो ये मुस्तहब, लेकिन जो पहली कर रहा है उसके लिए सुकून से कहना ज़रूरी है। दूसरे में आप कहते हुए भी जा सकते हैं, लेकिन पहली जो आपने माशाल्लाह अच्छा इशारा किया, तकबीरतुल इहराम जो है मुकम्मल खड़े होके कहना है, उसमें हिलना नहीं है, उसी को क़याम मुत्तसिल पर रुकू कहा जाता है। बाकी आप मुस्तहब अदा करते हुए अल्लाह अकबर कह के जा रहे हैं तो उसका कोई मतलब नहीं, चूँकि वो मुस्तहब है। तो आपके लिए दुआ करा दें, चूँकि आपकी भतीजी और